Hello students, today's our topic is chapter number 4, quadratic equation. What is the meaning of equation? The algebraic condition having the sign of equality is called an equation. Like 2x square plus 5x plus 6 equal to 0. Like 2x plus 1 equal to 0. That is the condition in which इक्वलिटी का साइन है, यानी कि अगर इस कंडीशन में इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशन है. Having the sign of equality, it is an equation. But if I write the example to x plus 1 only, that is to be this. अगर मैं इतना लिखता हूं बेटा 2x plus 1 इतनी कंडीशन में कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, so that is called as a polynomial. Clear? तो अगर किसी algebraic कंडीशन में इक्वल टू का साइन है तो that is called as a equation. अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो that is called as a polynomial. But what is the meaning of quadratic? Quadratic means the equation having degree 2. Let us take the type of equation. First, that is linear equation. The linear equation means x plus 1 equal to 0, 2x plus 7 equal to 0. अभी मैं I am writing the example quadratic equation like x square minus x plus 1 equal to 0. Like x square minus 5x minus 14 equal to 0. Third is your cubic equation. Like cubic equation x cube plus x square plus x plus 1 equal to 0, and to be your biquadratic equation like x4 plus 2x square plus 1 equal to 0. Now what is the meaning of linear equation? The equation in which the variable has power 1 means जिस equation की डिग्री 1 हो is called as the linear equation. Means यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1. So these are both of the examples of linear equation. Clear? Quadratic equation जिसमें polynomial की डिग्री कितनी हो 2. डिग्री का मीनिंग क्या है? Maximum power of the variable is called degree of the equation. तो यहां पर देखो आप x is the variable, यहां पर इसकी पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1, यहां पर तो x है ही नहीं, मतलब x की पावर कितनी है 0. तो यहां पर पावर है 2, यहां पर पावर है 1, यहां पर पावर है 0, तो मैक्सिमम कितनी पावर हुई 2. तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन, the equations having degree 3. यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 3, यहां पर वेरिएबल की पावर 2, यहां पर वेरिएबल की पावर 1, यहां पर वेरिएबल की पावर 0. तो इन सभी स्टेप्स में मैक्सिमम पावर कौन सी है 3, so that is called as the cubic equation. So now biquadratic means the degree having 4. If the equations
having degree 4 is called as the biquadratic equation. But our chapter is only about quadratic equation. In every form, in every formula, in every terms, we will only discuss how to solve given quadratic equation. हमारे पास क्यूबिक भी नहीं है, हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक भी नहीं है. We will only discuss about quadratic equation. Now, the standard form of quadratic equation: ax square plus bx plus c equal to 0. What is a? But in this condition, always remember that a should never be equal to 0. a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई इनटू x स्क्वायर, तो ये 0 इनटू x स्क्वायर, तो सारे का सारा हमारे पास क्या बन जाएगा 0. तो इक्वेशन हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगी bx plus c. मतलब the equation will be linear, but that should be like as a quadratic. So a should never be equal to 0. Now what is a? Where a? हमारे पास a क्या है? x square का कोफिशिएंट. b क्या है? y का कोफिशिएंट. And what is c? That is the constant term. Clear? So a is the coefficient of x square. What is b? That is the coefficient of x. And what is the c? That is to be your constant term. For example, I am writing the equation 2x square minus 5x minus 14 equal to 0. So जो x square के साथ है, that is the value of a. x के साथ है, that is the value of b. तो a is equal to 2. b is equal to, b का कोफिशिएंट क्या है? -5. Always write the coefficient values with its sign, not the without sign. If I am writing the coefficient without sign, means it is a plus value, positive value. Clear? And c, that is here -14. So that is about the standard form of the equation. Now, roots of equation. Roots of the equation. But what is the meaning of roots of the equation? Roots means if the equation is -2x minus 15 equal to 0. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट x is equal to 3. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू पुट करूँ मैं, तो दैट इज जहां जहां आपको x दिख रहा है उसकी जगह 3 पुट करते हैं बेटा. क्लियर? तो 3 स्क्वायर माइनस 2 into 3 minus 50. Clear? So that is 9 minus 6 minus 50. If I am solving the condition, so that is, इसको सारे को कैलकुलेट करके हमारे पास कितना बन जाएगा? That is 3 minus this, and left hand side is equal to -12. But what is your right hand side? That is 0. अगर मैंने ये वैल्यू पुट की है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, मींस LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS. तो मींस जो ये x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन. Clear? I am taking the another example value.
पुट x इक्वल टू -3। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ बेटा इसकी वैल्यूज, LHS is equal to -3 square -2 into -3 and that is your -15। clear? now square 9 मल्टीप्लाई करते हैं +6 -15, so this plus this 15 -15, so this to this cancel, so left hand side equal to 0 and also your right hand side is also 0, so means LHS becomes equal to the RHS। ये तो दोनों इक्वल हो गई हमारे पास। कब? अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी है -3। तो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, satisfy the values which satisfy the given equation is called roots of the equation। root of the equation means what is the meaning of satisfy? 2 मिनट के लिए अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है, आप उसके आंसर से सेटिस्फाई हो गए, मतलब आपके माइंड में उस क्वेश्चन के बारे में जो डाउट था that will become zero। in the same way I am also saying like this, what is the meaning of satisfy? means LHS equal to RHS। तो जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर? नाउ किसी भी इक्वेशन के लिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन के लिए लाइक डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। मीनिंग अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे हमारे पास? 2। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसी होंगी which can satisfy these that equation। other 2 values, यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 ही वैल्यूज होंगी, इसने तो सेटिस्फाई नहीं किया, बट और किसी वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसके अलावा कोई एक और भी वैल्यू होगी that can satisfy this equation। क्लियर? तो नाउ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे को पता लग गया नंबर of roots for quadratic equation। quadratic equation के लिए number of roots कितने होंगे? अभी मैंने बताया था डिग्री is equal to number of roots। तो quadratic की डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसके number of roots भी कितने होंगे? that will be 2। क्लियर? तो मैंने फर्स्ट रूट को नाम दे दिया अल्फा, दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और सेकंड रूट को मैंने नाम दे दिया दैट इज बीटा, लाइक दिस। क्लियर? नाउ अभी हमने पढ़ी है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? लाइक ax square plus bx plus c equal to 0। so what is a, b, c? these are the coefficients in the equation। clear? and what is alpha and beta? these are the roots of the equation। clear? so now sum of roots। अच्छा,
अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सिर्फ वर्डिंग चेंज है, वहां पे हम लिखते थे सम ऑफ जीरोस, यहां पर आ गया सम ऑफ रूट्स। अगला होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां पर हम पढ़ते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो सम ऑफ रूट्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक s, so that is alpha plus beta equal to minus b upon a, and product of root is represented like p, alpha into beta is equal to c upon a. What is alpha? First zero, first root. Beta, second root. Alpha and beta are the roots and a, b, c are the coefficients. Clear? Now, इतना तो हमारे को पता लग गया। अब हम ये चेक अपना डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे को सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पता है, तो हाउ कैन वी राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दीज टू वैल्यूज? मींस फॉर्मूला to write quadratic equation. So that is x square minus s into x plus p equal to 0. What is s? S means sum of roots. What is p? That is product of रूट्स। क्लियर? तो आई थिंक स्टूडेंट्स इतना टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है? Check whether the following are quadratic equation. Means हमारे को एक कंडीशन दी है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर जब आएगा उसको चेक करेंगे कि द फाइनल आंसर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मींस a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं बेटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करो बेटा 2x minus 6। क्लियर? सबको यहां पर आके क्रॉस कर दो बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x प्लस का है इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 है इधर आकर के प्लस 6 एंड दैट्स इक्वल टू 0। प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, दिस प्लस दिस, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। so yes it is a quadratic equation. Clear? Now these two brackets multiply, these two brackets are multiplied. Clear? इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो दैट इज इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलो x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 माइनस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ x multiplied by plus 3 minus 1 x plus 3, x को इससे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3। क्लियर? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को सोल्व करो, माइनस x माइनस 2, इन दोनों को सोल्व करो 2x माइनस 3। क्लियर? इन दोनों को उठा करके यहां ले जाओ, 2x माइनस x उधर जाके बन जाएगा प्लस x, माइनस 3 ये वाला उधर जाके माइनस 2 बन जाएगा प्लस 2। नाउ दैट इज
3x। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 इक्वल टू 0। यहां पर x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है हमारे पास 1, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए हमारे पास, बट हियर इज द डिग्री 1, मीन दैट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक but it is a linear equation. Here now x cube minus 4x square minus x plus 1 as it is a minus b whole cube की आइडेंटिटी। तो a minus b whole cube क्या होता है बेटा हमारे पास, a minus b whole cube that is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, clear? a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, clear? That is x cube minus 4x square minus x plus 1, x cube minus 8, this will be this minus 6x square 4 into 3 plus 12x, x cube to cancel with x cube। so इधर ले आओ बेटा minus 4x square minus 6 इधर आके हो जाएगा plus 6x square minus x 12x इधर आके हो जाएगा minus 12x plus 1 minus 8 इधर आके हो जाएगा plus 8 equal to 0। so now इन दोनों को सोल्व करते हैं तो I will get 2x square, इन दोनों को सोल्व करते हैं we'll get minus 13x, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो plus 9 equal to 0। now this equation has degree 2, so that is quadratic equation। okay students, now the product of two positive consecutive integers. What is the meaning of consecutive integers? Consecutive means continuous. Continuous means 3, 4, 5. 3 के बाद क्या आता है बेटा 4, 4 के बाद 5. So these are the consecutive integers, continuous numbers. Clear? तो let दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज 306 and we have to find these integers। so let first positive consecutive integers that is x। अच्छा 2 मिनट के लिए अगर मेरे को एक नंबर पता है 3, सो इससे नेक्स्ट कौन सा होगा, इसमें +1 कर दूंगा दैट विल बी 4। 4 से अगला कौन सा होगा +1 कर दो उसमें दैट विल बी 5। तो यानी कि अगर मेरे को कोई सा भी एक कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाए सो उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, सिंपल उसमें +1 कर दो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर। सो लेट सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फर्स्ट x है, अगला हमारे पास क्या होगा x plus 1। सो इससे अगला कौन सा होगा, इसमें फिर +1 कर दो दैट विल बी x plus 2। क्लियर? बट गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है दैट इज 306। क्लियर? नाउ according to question, first number into second number is equal to this। first number क्या है that is x, second हमारे पास क्या है x plus 1 is equal to 306। that is multiply करो x square plus x is equal to 306। so x square plus x minus 306। क्लियर? अब अगर मैं 306 के
मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशंस करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आई विल गेट द फैक्टर्स लाइक x square plus 18x minus 17x minus 306 y equal to 0. Now इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्लियर? इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या रहेगा x, तो आई विल गेट x plus 18. इतना काम तो अपने मिड टर्म स्प्लिटिंग का काम जो है हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. नाउ इन दोनों में से minus 17 will be the common, that will be 80x plus 18 equal to 0. Now I will get two factors like x minus 17 and x plus 18 equal to this. Either x minus 17 equal to 0 and x plus 18 equal to 0. So I will get x is equal to 17 and x equal to minus 18. I will neglect this value because we want positive integers here. So neglecting this value, negative value, because according to the question we want positive integers here. So required first integer, that will be 70, and the second integers, that will be 17 plus 1 equal to 18. So that is the completion of the question. Now in this question, age problems is a much important question. Rohan's mother is 26 years older than him. यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़े हैं. अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मम्मा कितने साल के हैं? 27 इयर्स. क्लियर? मतलब जितनी भी रोहन की एज होगी, अगर उसमें मैं 26 प्लस कर देता हूं तो दैट विल बी द एज ऑफ हिज मदर. क्लियर? अगर रोहन 1 ईयर का है तो उसकी मदर कितने के होंगे? 27. रोहन 10 इयर्स का है तो उसकी मदर कितने के होंगे? 36. रोहन 20 इयर्स का है तो उसकी मदर 20 plus 26, the mother will be 46 years old. Is it clear or not? But हमारे को ये ही तो नहीं पता, तो रोहन्स की प्रेजेंट एज क्या है नहीं पता, तो इसको हम एज्यूम करेंगे. लाइक दोनों की एज को, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, that is x years. Let present age of her, now his mother. Mother की एज रोहन से 26 ईयर older means x plus 26 years. But after 3 years, the product of their ages is 360. Clear? So after 3 years, let Rohan's age, अभी रोहन x years का है. After 3 years, जैसे आप अभी मान लो 15 इयर्स की हो, तो आफ्टर 3 इयर्स 15 प्लस 3 18 इयर्स. तो मींस आफ्टर के लिए प्लस, बिफोर के लिए माइनस. So that is, let Rohan's age x plus
After 3 years, so that is the x plus 3 years. Let mother's age, that will be x plus 2060 to present age है, plus 3 after 3 years, that she will be x plus 29 years. Now, given product of ages, 360 means according to question रोहन्स एज इनटू मदर्स एज दोनों का हमारे को क्या गिवन है बेटा, प्रोडक्ट गिवन है। तो रोहन की एज कितनी है, दैट इज दिस x plus 3, मदर की एज कितनी है x plus 29 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दैट इज 360। क्लियर, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें बेटा, तो x into this x square plus 29x plus 3x plus 87 is equal to 360. Clear? Now x square plus 32x, this plus this 32x plus 87 minus 360. Clear? So that will be x square plus 32x, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो that will be minus 273. Clear? Now what will be the midterm splitting की हेल्प से इसको सॉल्व करते हुए उठा करके हम, क्लियर, आई थिंक इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 39 and 7. Clear? Now x square plus 39x minus 7x minus 273 equal to this. Clear? इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x common will be here x plus 39. इन दोनों में से minus 7 will be common and that will be x plus 39 equal to 0. Now the factors will be x minus 7 and x plus 39 equal to 0. Clear? So that is either x minus 7 equal to 0 or x plus 39 equal to 0. So here the value of x will be 7 and here the values of x will be minus 39. So again हम इस वैल्यू को करेंगे नेग्लेक्ट। Why? Because हमने x assume किसको किया है, एज को, चाहे वो किसी की भी एज हो हमारे पास, एज, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, हाइट, वॉल्यूम, मनी। ध्यान से सुनना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, मनी, एज। अगर इन प्रॉब्लम्स में, इन क्वेश्चंस में अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आती है तो यू विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव बिकॉज एज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास रोहन की एज कितनी आई बेटा, तो रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7 इयर्स। तो मदर की एज कितनी थी हमारे पास, रोहन से 26 इयर्स ओल्डर, मींस अगर रोहन 7 इयर्स का है तो मदर विल बी 7 plus 26, that will be 33 years old. So that is about the question for age problems. Okay students, in my next video I will start next exercise.